चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 49, पिंटो। ये वाला एक सम कर लेते हैं। सो जो यू शुड अज्यूम दैट टुडेज डेट इज 1st of December 2025. Pinto has requested advice on the following. Has एक मिनट, has tax resident status for tax year 25-26. ठीक है, एंड ये सब उन्होंने कुछ 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 पूछे हैं चीजें, ये एक बार अपन कर लेते हैं। Assuming that Pinto does not satisfy any of the automatic tests in relation to the tax residence, explain whether or not he will be resident in the UK for tax purpose in the tax year 25-26। ठीक है, तो ऑटोमेटिक टेस्ट ये बंदा बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो हमको बेसिकली नाउ दैट ही डज नॉट satisfy any of the automatic UK residence and non-residency tests, we have to look at the the ties, whether he has the sufficient ties, है ना। ठीक है, is domiciled in the UK, is neither married nor has civil partner। ठीक है, एक मिनट, ये दो is neither married nor in civil partnership and has no children, therefore the family tie does not get fulfilled। Nice। Travel to the country of Visia. Pinto had always been tax resident in the UK until 1st of May 2023, when he left to travel and work part time in the country of Visia। Okay, एक सेकंड ना। Visited UK for only 2 weeks in each of the tax years 23-24 and 24-25। और हम लोग टैक्स स्टेटस ऑफ 25-26 निकाले, सो दैट मीन्स ही हैज नॉट विजिटेड यूके फॉर एटलीस्ट 90 days इन द प्रीवियस टू टैक्स ईयर्स। तो 90 days वाला टाइप फुलफिल नहीं होता। ही इज ऑलवेज बीन रेसिडेंट इन द करंट ईयर ऑल्सो। हम लोग ये बोल सकते हैं ना भाई कि वो नहीं रहा है, मतलब उतने दिन। रुक जाओ, कुछ नीचे भी दिया हुआ है। रिटर्न टू यूके पिंटो, ही विल रिटर्न टू यूके ऑन 20th of December 25। वेरी इंटेंस टू रिमेन परमानेंटली। क्यों भाई है ये सारा। चलो, इसने 11 दिन रहा वो, ठीक है। यूके में नहीं, वो 20 दिसंबर को यहाँ पे आया, तो वो एक्चुअली यूके के 12 दिन रहा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12 days। यू स्टेड फॉर 12 days। 12, 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 5, है ना। So that means he has stayed in the UK for 12 plus 20. तो ये 40 plus 62, 102 plus 5, he has stayed in UK for 107 days। ठीक है, he has stayed in UK for 107 days। It has been said that he will be working part time for the in UK from, ये देखो इतने टाइम तक वो रहा है। So sorry, he is working for 36 days, which is not a substantial period of working, that is 40 days, therefore uska working tie is also not fulfilled। Then we come to, he will live with his sister following his return in the to the UK। Pinto sold his UK house। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके तीन टाइज फुलफिल नहीं हो रहे हैं ना। And he has not stayed in the UK for मतलब more than, basically ये he has not stayed in any other country, he has not stayed more days in the UK than any other country in the world, है ना। तो इसके ये चार टाई तो फुलफिल नहीं हो रहे। ही इज नॉट फुलफिलिंग 4 टाइज। और अभी वो कितने चाहिए था भाई उसके लिए, कहाँ गया वो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। भाई जल्दी, भाई जल्दी दो भाई। ऊपर चला गया वो। हाँ, ये रहा, ये देखो। अभी ये वाला जो मैंने पहली बार किया था उस टाइम किया था, अभी ये वाला टैक्स जैसे प्रीवियसली वो रेसिडेंट था। अभी 107 है, तो वो ये वाला टाइप पहले। हाँ, ये वाला रेसिडेंट इफ टू योर मोर टाइज। तो ये देखो, वो बेसिकली मतलब वो रेसिडेंट था तो उसको 2 और मोर टाइज फुलफिल करने पड़ते। नाउ ही इज नॉट फुलफिलिंग 2 और मोर टाइज, ही इज ओनली फुलफिलिंग 1 टाई आउट ऑफ द लास्ट 4 टाइज, है ना। तो मतलब 1 टाई भी अपने को पता नहीं है कि भाई उसका मतलब वो कहाँ पे रहता है भाई। अभी वो बहन के साथ रहता है तो ठीक है भाई, उसका घर है यूके में। ठीक है, लेकिन 4 टाइज तो फुलफिल नहीं हो रहा है। बस बात खत्म हो गया आई थिंक यहाँ पे। सो ही इज नॉट बेसिकली रेसिडेंट। खत्म भाई।
पिंटो as Pinto does not satisfy any of the automatic, हाँ ठीक है, टाइज देखने पड़ेंगे. As Pinto was previously resident, at least one of the previous 3 tax years, yeah, and will be UK for more than 91 and 120 days in the tax year 25-26. He will be resident in this tax year if he satisfies at least 2 ties. Perfect है. Pinto will satisfy the following tie accommodation. He will have accommodation available to him for continuous period for more than 90 days, and he will make use of the accommodation for more than 16 nights. ये तो 16 nights मेरे को याद ही नहीं था, बट ठीक है, मतलब वो 90 days का ठीक है. But he will not satisfy, देखो substantial work 90 days perfected, does not and has not spent any more time in the UK, close, उसकी कोई family भी नहीं है. Nice. तो accordingly as Pinto or satisfies only one time, he will not be a UK tax resident in the tax year 25-26. Nice. तो ये वाला हो गया, पूरे 5 मार्क्स मिल गए. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू पिंटोस टैक्स रेजिडेंट स्टेटस व्हाई द सेल ऑफ हिज हाउस in UK to on 30th of April 24 will have been subject to UK capital gains tax and calculate the chargeable gain arising. You should include an explanation of any reliefs available. देखो सबसे पहली बात तो ना भाई, मुझे यहाँ पे समझ गया है. वो सेल कर रहा है अपना यूके प्रॉपर्टी ऑन 30th of April 2025, सोल्ड द यूके हाउस. ठीक है. देयर वॉज एन एक्सेस ऑफ प्रोसीड्स ओवर 47,000. ठीक है ना. तो सबसे पहली बात तो इफ यू परचेज यूके प्रॉपर्टी यू विल बी टैक्स भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट यू आर, मतलब वो रेसिडेंट की नहीं हो वैसा. बट इफ यू आर सेलिंग अ यूके प्रॉपर्टी विच इज इन यूके यू विल बी टैक्सेबल एंड कैलकुलेट भी करना है. अच्छा. इवन यूके रेसिडेंट एंड डोमिसाइल्ड है वो, तो आई फील he's only temporary non-UK resident first of all. ठीक है ना. As he has stayed in the UK for at least 4 out of the last 7 tax years. ठीक है ना. अरे लेकिन एक मिनट, वो करंट ईयर वो करंट टैक्स में कहाँ है? वो करंट टैक्स में मतलब वो रेसिडेंट ही नहीं है ना. मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई वो वर्ल्ड वाइड इनकम आपका कुछ भी हो. ठीक है. इफ यू इवन इफ यू आर नॉट अ यूके टैक्स मतलब वो रेसिडेंट, लेकिन यू हैव परचेज्ड यूके प्रॉपर्टी एंड यू आर सेलिंग अ यूके लैंड और प्रॉपर्टी, तो दैट्स और मतलब प्रॉपर्टी, यू आर टैक्सेबल भाई. मैं तो ये बोल रहा हूँ. ठीक है. सब्जेक्ट टू यूके कैपिटल गेन्स एंड कैलकुलेट द चार्जेबल गेन अराइजिंग. यू शुड इंक्लूड एनी एन एक्सप्लेनेशन फॉर एनी रिलीफ्स अवेलेबल. ठीक है. हमको सीजीडी बताना है भाई. तो सीजीडी कैलकुलेट करना है. ठीक है. देखो, Pinto sold his UK house where there was excess of proceeds over cost. इसलिए gains हुए थे 47,000 के. ठीक है भाई. गेन्स हुए थे, सुन लो भाई, गेन्स हुए थे 47,000 के. ये तो फालतू ही था एक्चुअली. इसको ऊपर ही करता हूँ. ठीक है ना भाई, आ जाओ. 49 भाई. पिंटो. ठीक है ना. पिंटो क्या बोलता है भाई कि सुनो, मैं वो कैपिटल गेन्स चाहिए, तो मेरे चार्जेबल गेन्स कितने हैं? मेरे जो चार्जेबल गेन्स है, ठीक है, वो है 47,000 के. ठीक है. Pinto bought the house on 1st of May 19 and had lived in it himself from 1st of May 19 to 30th of April 23. Pinto let the house to two tenants from 1st of May 23 and its sale on 30th of April 24, मतलब 12 महीनों के लिए. Pinto did not own the property in the period from 1st of May 19 to 30th of April 24. ठीक है. ये क्या है अभी ये? क्या बोलते हैं इसको? पीआरआर तो है ही ये, बट हाँ पीआरआर ही बोलेगा फिलहाल के लिए. पीआरआर
PRR रिलीफ कैलकुलेशन, ठीक है ना। Pinto bought the house on 1st of May 19 and had lived the property till 30th of April 23. फर्स्ट में नहीं, मैं इतना सब नहीं लिखता। लिव्ड इन दी प्रॉपर्टी, ऑक्यूपेंसी, ओनरशिप, 48 मंथ्स के लिए। 40, मैं actually ये काउंट कर रहा था कि 19 से 23 पे तो 48 मंथ्स हो रहे हैं कि नहीं। 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है ना। फिर हम बढ़ते हैं आगे। ही लेट द हाउस टू टेनेंट्स, अभी भाई टेनेंट्स को उस बंदे ने दे दिया हाउस। टेनेंट्स ओनरशिप 12 महीनों की थी ऑक्यूपेंसी, लेकिन यहाँ पे पूरे नहीं नहीं आएगी यहाँ पे। कितने, हाँ यार, कितने परसेंटेज में दिया भाई। वो लेटिंग रिलीफ नहीं है क्या भाई फिर ये, क्योंकि उसने कितने परसेंटेज में दिया वो उसने बताया। आई थिंक उसने पूरा ही दे दिया था, ऐसा था फिर, है ना। लास्ट 9 मंथ्स तो हमको मिलेगा, लेकिन लास्ट 9 मंथ्स इसका सबमिशन करता हूँ। अरे भाई, तो मैं करता हूँ इसका सबमिशन 57 भाई, ठीक है ना। लास्ट 9 मंथ्स का मैं ऐसे कर रहा हूँ। सीन बताया गया, ही डिड नॉट ओन एनी अदर प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ना एक्चुअली explain the with comparison to Pinto's tax resident status why sale of the house in on 30th of April 24 will be subject to UK capital gains tax. I I feel यहाँ पे एक कोई तो चीज थी, they was giving it one lower month. There was just one more thing in here that was giving it one lower month. I'm not able to put a finger on it कि what it was. But there was, मुझे ये याद है कि इधर 1 महीना हमको कम लेना है। मुझे याद नहीं आ रहा क्यों कम लेना है, लेकिन PRR रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो PRR दिस इनटू दिस, कहते हैं मेरा टैक्सेबल गेन्स। यहाँ पे एक एक्चुअली मुझे एक गलती लग रही है, क्योंकि मुझे 1 मंथ कम लेना है यार। देयर सम रीजन टू इट। आई फील टैक्स ईयर मेरा वो नहीं है, कुछ और है। आई फील वैसा ही है कुछ तो है, ठीक है ना। मैंने बाय इस टाइम पे किया है। लेकिन मैं छोड़ के कब जा रहा हूँ भाई, मैं यूके छोड़ के कब जा रहा हूँ। He has always been UK student in the UK until on 1st of May 2023 he left to work part time in the country of विसिया भाई। ठीक है, वो 1st of May 2023 निकल चुका था विसिया के लिए। वो वापस कब आया, लेकिन भाई वो वापस आया। एक सेकंड रुक जाओ। वो वापस कब आया, ही रिटर्न टू यूके ऑन 20th of December 2025। भाई वो यूके में था ही नहीं। ही वॉज नॉट देयर इन द यूके एट ऑल। अगर वो यूके में है ही नहीं, तो फिर वो कैसे क्लेम कर सकता है ना भाई। या नहीं। नहीं यार, वो एक्चुअली 1 मंथ का ही है कि वो 1 मंथ मुझे यहाँ पे कम लेना है, बट आई आई एम नॉट एबल टू पुट अ फिंगर ऑन इट कि मुझे वो कम क्यों लेना है। समझे। ऐसा ऐसा सीन है वो। CCT में हायर रेट टैक्स पे हूँ क्या। टैक्स 24 25।
इफ यू आर हायर रेट टैक्स पे देन बेसिकली उसके ऊपर 24% लगेगा। ठीक है, तो आ जाओ भाई चेक करते हैं। पी आर आर लिव वर्किंग, सी यहाँ पे उन्होंने एक मंथ कम लिया है भाई। दे टेकन 1 मंथ लो लेसर। वो वही है कि मैं निकला हूं ना भाई, ये देखो वो बंदा यूके में था ही नहीं। परफेक्ट। ही वॉज नॉट देयर इन द यूके, ही लेफ्ट फॉर यूके। ही ऑलवेज बीन टैक्स, मतलब वो रेसिडेंट, बट ऑन 1 May 2023 when he left for the tax year 23-24 he was not a UK resident only। तो अपन को वो एक महीना नहीं लेना है क्योंकि वो April 23 को निकला ना भाई, ऐसा है वो। तो यहाँ पे एक्चुअली अपने को 48 नहीं 47 लेना है। वो 56 होता है। परफेक्ट, तो फिर अपने को उतने का क्या चार्जेबल गेन्स आता है। फिर उन्होंने अपने को परसेंटेज दिया नहीं है कि वो हायर रेट है कि नहीं है। इसलिए उन्होंने चार्जेबल गेन्स तक ही अपने कैलकुलेशन को रखा है। उन्होंने फिर बाद में वो सीजीटी कैलकुलेट किया नहीं है। ठीक है। वो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आई एम नॉट एबल टू पुट अ फिंगर ऑन इट, ये वही रीजंस है कि बेसिकली ये बंदा यूके छोड़ के चला गया। अगर तुम उस यूके रेसिडेंट हो ही नहीं तो आपको नहीं टैक्स चार्ज कर, तो आपको वो ऑक्यूपेंसी कंसिडर ही नहीं करनी है आपकी। हमेशा ही भूल जाता हूँ मैं ये लाइन, पर पता नहीं क्यों भाई। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया ना एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी रिलीफ। तो पीआरआर है, एक्सप्लेनेशन क्या देना है इसमें? हाँ पीआरआर है, ये देखो। पीआर इज अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑक्यूपाइड, दिस इज बिकॉज विंडोज not a UK resident in the tax year 23-24 and did not satisfy the day count test, stay overnight the property for at least 90 days। ठीक है ना? ये एक है इसमें, सात के में से आई थिंक दो या तीन ही मिलते हुए, छोड़ो। कैलकुलेट पिंटोज प्रॉपर्टी इनकम आफ्टर ऑल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस इन विसिया फॉर द टैक्स ईयर 26-27। सो अभी ये रहा। तो यहाँ पे सैलरी इसको इतने, डिविडेंड इसको इतने मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट ऑफ 26-27। हाँ आई थिंक मुझे कौन से साल के लिए निकालना है, वो 26-27 ही, हाँ 26-27 के लिए ही निकालना है। ठीक है, तो सी पार्ट आता है। पता है जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ना, मुझे उसके साथ ही जाना चाहिए भाई। सैलरी, डिविडेंड्स, कितने है भाई? सैलरी है 10,000 की, डिविडेंड्स है 2,500 के, अरे भाई 2,500। Windows no other source of income in the tax year 26-27 will be the rental income from house of, अच्छा ओके, अदर सोर्स ऑफ इनकम है। इसने एक्वायर किया था हाउस दिसंबर 24 को। पिंटो विल रेंट आउट दिस हाउस फ्रॉम 1 May 26 एंड देन उन्होंने बोला गया है कि इन द टैक्स ईयर 26-27 पिंटो विल रिसीव अ रेंटल इनकम ऑफ 8,375 आफ्टर ऑल अलाउेबल एक्सपेंसेस। तो फिर वो आता है रेंटल इनकम 8,375 फॉर रिडक्शन ऑफ द विसिएंट। ठीक है ना? तो इसका टोटल इनकम, तो मुझे तो उन्होंने भाई सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम का क्या होगा आफ्टर ऑल टैक्सेस। 8 मार्क के लिए? भाई ऐसा क्या है भाई इस क्वेश्चन में कि ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क के लिए है भाई? ठीक है, मैं पता, मैं फिलहाल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूँ, मुझे पता है। लेकिन ये मैं क्या करूँ भाई? टैक्सेबल इनकम विच इज, मैं पता है क्या करता हूँ, मैं इसका जो है नीचे कर लेता हूँ। ठीक है ना?
तो क्या हुआ है, हो जाएगा इसके ऊपर मेरे को 2570 SI 023770 रुक जाओ, टोटल कम टैक्स लायबिलिटी विच इज द सम ऑफ दिस। तो अभी यहाँ पे 0, यहाँ पे 8.75, ये मेरे को आ जाती है टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है ना भाई, अरे भाई डिविडेंड नील रेट बैंड याद है मेरा, डिविडेंड डिविडेंड। अभी जब मैं प्रॉपर्टी इनकम पे जाता हूँ ना भाई, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे ना लेस करना है DTR, लोअर ऑफ यूके टैक्स ऑन ओवरसीज इनकम, ओवरसीज टैक्स ऑन ओवरसीज इनकम। डायरेक्टली 0.2 करूंगा, और इसी का डायरेक्टली भी देखो यहाँ पे उन्होंने DTR का दिया है। देखो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि डबल टैक्स ट्रीटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो यूनिलैटरल टैक्स ट्रीटी अवेलेबल होती है, ठीक है ना। तो लोअर ऑफ में ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, therefore अभी नेट लायबिलिटी जो क्रिएट होगी वो होगी जीरो की भाई, जीरो। नेट लायबिलिटी जो क्रिएट हो रही है वो जीरो की होगी, इसमें कोई रिफंड विफंड जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने हमसे प्रॉपर्टी इनकम पूछा है आफ्टर ऑल टैक्सेस, तो प्रॉपर्टी इनकम का हम वैल्यू देंगे 8375, ठीक है ना। टैक्सेस पेड जीरो, सो नेट प्रॉपर्टी इनकम, नेट प्रॉपर्टी इनकम, नेट प्रॉपर्टी इनकम आफ्टर टैक्सेस, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन, ठीक है ना, ये हो गया। लेट्स चेक नाउ। ये देखो प्रॉपर्टी इनकम, इन्होंने खाली ये वाला, ओके ओके ओके, ये लोग बोल रहे हैं खाली जो आपने फॉर्म में भरा है वो वाला माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म में तो आता है 7035, फॉर्म में भरा हुआ। ये देखो नीचे उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, ठीक है ना। यूके एट्रीब्यूटेबल टैक्स टू ओवरसीज इनकम 13336, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। एंड देन ऑफकोर्स डबल टैक्स ट्रीटी, ओवरसीज टैक्स अफर्ड, आई डोंट नो, ये यहाँ पे लोअर ऑफ में आई थिंक नहीं आना चाहिए था, मतलब ये 13336 नहीं आएगा, आई थिंक ये 1340 ही आएगा, ठीक है ना। आई थिंक वी कैन कीप इट दैट वे एंड मूव फॉरवर्ड विद दिस सम। या आई फील ये सम में हमने बहुत माइनर एरर एक्चुअली किए थे, कि हम लोग हमारे गट इंस्टिंक्ट के साथ नहीं गए थे एक्चुअली बहुत दफा, वो वहाँ पे जाना चाहिए था। आई थिंक वी कुड हैव सॉल्व दिस सम वेल एज वेल।